أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. ترجمہ کنزُ العرفان. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی. ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے. جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا. آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرمانبرداروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہم السلام کے مخلص فرمانبردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے. حدیث شریف میں آیا ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے. ذیلی سطور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے شوق رفاقت کے چند واقعات ملاحظہ ہوں. چنانچہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل مانگو. میں نے عرض کیا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو.
जंग उहद के मौके पर हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी का शरफ अता फरमाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए और उनके शोहर और उनके बेटों के लिए इस तरह दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफक़ाई फिल जन्ना, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन सब को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी भर ऐलानिया ये कहती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत मुझ पर आ जाए तो मुझको उसकी कोई परवाह नहीं। आशिकों के इमाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उनकी सौजा शिद्दत गम से फरमाने लगी, हाय गम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वाह, बड़ी खुशी की बात है कि कल हम अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मुलाकात करेंगे। एक जंग के मौके पर हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत हाशिम बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, ए हाशिम रज़ी अल्लाह ताला, तुम जन्नत से भागते हो, हालांकि जन्नत तो तलवारों के साए में है। आज मैं अपनी महबूब तरीन हस्तियों मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। चुनांचे उसी जंग में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई। जब हजरत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। जब उन्होंने देखा कि ये इसी मर्ज में वफात पा जाएंगे तो फरमाया, तुम खुश हो जाओ, कल महबूब तरीन हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मुलाकात करोगे। अल्लाह ताला उन मुकद्दस हस्तियों के शौक़े रिफाकत के सदक़े में हमें भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र व हश्र और जन्नत में रिफाकत नसीब फरमाए, आमीन। इस आयत में सिद्दीकीन का लफ्ज आया है। सिद्दीकीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सच्चे मुत्तबईन को कहते हैं जो इखलास के साथ उनकी राह पर कायम रहे। इसी मुनासिबत से यहाँ हम उसके मुआनी और उसके दर्जात बयान करते हैं। चुनांचे इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सिद्क 6 मुआनी में इस्तेमाल होता है। 1 गुफ्तगू में सिद्क, 2 नियत और इरादे में सिद्क, 3 अज़्म में सिद्क, 4 अज़्म को पूरा करने में सिद्क, 5 अमल में सिद्क, 6 दीन के तमाम मकामात की तहकीक में सिद्क। इन मुआनी के एतबार से सादिकीन के बहुत से दर्जात हैं और जिस शख्स में किसी खास चीज में सिद्क पाया जाए तो वो उसी चीज की निस्बत से सादिक कहलाएगा। चुनांचे पहला सिद्क ज़बान का सिद्क है और ये सिर्फ खबरें देने में या उन बातों में होता है जो खबरों में शामिल हो और उनसे आगाही हो और उसमें वादे को पूरा करना और उसकी खिलाफ वर्जी करना भी दाखिल है। लिहाजा हर बंदे को चाहिए कि वो अपने अल्फाज की हिफाजत करे और हमेशा सच्ची बात ही कहे। दूसरा सिद्क इरादे और नियत से मुताल्लिक है और ये इखलास की तरफ लौटता है, यानी बंदे की हरकत और सकनात का बाइस सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। अगर उसमें कोई नफसानी गर्ज भी आ जाए तो सिद्क नियत बातिल हो जाता है और ऐसे शख्स को झूठा कहना सही है। लिहाजा हर सादिक का मुखलिस होना जरूरी है।
तीसरा सिद्क अज़्म का सिद्क है, क्योंकि बाज औकात इंसान किसी अमल का पुख्ता इरादा करता है और दिल में कहता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे माल अता फरमाया तो मैं तमाम माल सदका कर दूंगा, या ये कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते में मेरा दुश्मन से मुकाबला हो तो मैं उससे लड़ूंगा और उस लड़ाई में अगर मैं कत्ल भी हो जाऊं तो मुझे उसकी परवाह ना होगी, या अगर अल्लाह ताला मुझे हुकूमत दे तो मैं इंसाफ करूंगा और जुल्म करने और मखलूक की तरफ मैलान के जरिए अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूंगा। ये अज़्म और इरादा दिल में होता है और इंतहाई पुख्ता और सच्चा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें दूसरी तरफ मैलान और तरद्दुद होता है। नीज़ ऐसी कमजोरी होती है जो अज़्म में सिद्क के मुकाबिल और उसकी जिद होती है, और सादिक जिद होती है तो सादिक और सिद्दीक वो शख्स है जिसका पुख्ता इरादा तमाम नेकियों में कुव्वत तामा के साथ होता है, उसमें किसी किस्म का मैलान तरद्दुद और कमजोरी नहीं होती, और उसका नफ्स हमेशा नेक कामों पर पुख्ता इरादा रखता है। चौथा सिद्क अज़्म को पूरा करने का सिद्क है, क्योंकि बाज औकात नफ्स फिलहाल अज़्म कर लेता है और उसकी वजह यह होती है कि वादे और अज़्म में कोई मशक्कत नहीं होती और उसमें मेहनत भी कम होती है, लेकिन जब हकीकत का सामना होता है और कुदरत हासिल हो जाती है और शहादत का जोर होता है तो अज़्म खत्म हो जाता है और ख्वाहिशात गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से वो अज़्म को पूरा नहीं कर सकता, और ये बात सिद्क के खिलाफ है। पांचवा सिद्क अमाल का सिद्क है, यानी इंसान कोशिश करे हत्ता कि उसके जाहिरी अमाल ऐसी बात पर दलालत ना करे कि उसके दिल में जो कुछ है वो जाहिर के खिलाफ है। ये कोशिश अमाल को छोड़ने से ना हो बल्कि बातिन को जाहिर की तस्दीक की तरफ खींचने से हो, और ये बात तर्क रिया से हासिल होती है, क्योंकि रियाकार तो यही चाहता है कि उसके जाहिर से बातिन की अच्छी सिफात समझी जाए। अलबत्ता कई नमाजी नमाज में खुशू व खुजू की सूरत में खड़े होते हैं और उनका मकसद दूसरों को दिखाना नहीं होता, लेकिन उनका दिल नमाज से गाफिल होता है, और जो शख्स उसे देखता है वो उसे अल्लाह ताला के सामने खड़ा देखता है, जबकि बातनी तौर पर वो ख्वाहिशात में से किसी ख्वाहिश के सामने बाजार में खड़ा होता है। इस तरह ये अमाल ज़बान हाल से बातिन की खबर देते हैं और वो इसमें झूठा होता है और उससे अमाल में सिद्क की बाज पुरुष होगी। इसी तरह कोई शख्स सुकून वकार से चल रहा होता है, हालांकि उसका बातिन सुकून वकार से मौसूफ नहीं होता, तो ये भी अपने अमल में सच्चा नहीं, अगरचे उसकी तवज्जो मखलूक की तरफ ना हो और ना ही वो उनको दिखा रहा हो। खुलासा यह है कि अगर जाहिर का बातिन के खिलाफ होना कस्द इरादे से हो तो वो रिया है और उससे इखलास खत्म हो जाता है, और कस्द इरादे के बगैर हो तो उससे सिद्क फोत हो जाता है। और इस किस्म की खराबी से नजात की सूरत यही है कि जाहिर और बातिन एक जैसा हो, बल्कि बातिन जाहिर से बेहतर हो। छठा और सबसे आला और मुअज़्ज़ज़ दर्जे का सिद्क मकामात दीन में सिद्क है, जैसे खौफ, उम्मीद, ताज़ीम, ज़ुहद, रिज़ा, तवक्कुल, महब्बत और बाकी उमूर दीनिया में सिद्क पाया जाना। उन उमूर की कुछ बुनियादें हैं जिनके जाहिर होने से ये नाम बोले जाते हैं, फिर उनके कुछ मकासिद और हकाइक हैं। तो हकीकी सादिक वो है जो इन उमूर की हकीकत को पाले, और जब कोई चीज गालिब आ जाए और उसकी हकीकत कामिल हो तो इससे मौसूफ शख्स को सादिक कहा जाता है। याद रहे कि इस आयत में सिद्दीकीन से सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सबसे पहले मुराद है।
جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جان دی، اور صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال و اعمال اور ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔